come to the topic regarding improvement of land under the Tenancy Act that is promulgated in Punjab. Improvement of land is a very important topic because uh, it mixes somehow with the rights and duties of landlord and tenants towards each other, and also regarding the idea of ejectment, which we have already discussed. So let us start. First, we will see what is improvement. It is a valuable addition in the land done by tenant or landlord which adds the value of land. For example, tube well, canal for irrigation purpose, or any structure erected for cattle. If such land is used for cattle farming, so anything which is done to land that will improve its utility, will improve its value, that will improve the produce crops, is the improvement. It is actually adding the value, the utility of the land. Normally such improvement is done to increase the value of produce. It is such type of work which is suitable to tenancy by increasing its value and in consistence with the terms and conditions by which said land is held. So we are talking here about the tenancy agreement. So all of the things which are adding the value but according to the terms and conditions of the said tenancy agreement will said to be improvement. Section 61 to 68 are relevant here. Improvement must not be inconsistent with the terms and condition of tenancy. It must add value to tenancy. It must increase value of occupancy every year. So what are the instances of improvement? Making wells or artificial channel for water for irrigation, construction of drainage, works for storage of water, works for protection against floods, plantation of trees, reclaiming, enclosing, leveling and terracing of land for agricultural purpose, erection of buildings for convenient and profitable tenancy, buildings, for example any hut or anything which is for cultivators to rest there, or for cattle if that is a cattle farming. Renewal of any of the foregoing works, also repairs. Exception: all works of clearance, embankment, leveling, enclosures, temporary wells and water channels made in the ordinary course of cultivation are not included in improvement. So all of these works should be for special. It should be special. If they are done ordinarily, these are not the instances of improvement. Improvement by landlord, section 61-62. Prior permission of collector is necessary in case of occupancy tenant. For such permission, an application has to be filed to the collector, whereby a fair chance of hearing will be awarded to all of the tenants. यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि एक कलेक्टर जो है ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है वो कर सकता है, लेकिन जो एप्लीकेशन जो है वो उसने खुद से सबसे पहले उसने ये देनी है। किसको देनी है? उसने ये एप्लीकेशन देनी है किसको? कलेक्टर को, कि भाई वहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। ये अब हमने लैंडलॉर्ड की देखे ना, यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि अगर लैंडलॉर्ड ऑक्यूपेंसी, ये देखिए ना, यहाँ पे आपको एक बंदा है वो काबज़ है मेरी जगह पे, क्योंकि जगह तो उसके कब्ज़े में है, और मैंने इम्प्रूवमेंट करनी क्योंकि मेरे ख्याल में लैंड की यूटिलिटी कम है। तो इस सूरत में मुझे पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि इस मेरे को वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है, मेरी मर्ज़ी के बगैर ऑक्यूपेंसी टेनेंट हम देख चुके हैं। अब इस सूरत में ऑक्यूपेंसी टेनेंट भी हाजिर होगा, वो भी कोई ऑब्जेक्शन अपनी लगाएगा और उन ऑब्जेक्शंस को सुनने के बाद कलेक्टर जो फैसला करेगा। और
इम्प्रूवमेंट जो है वो होने के बाद चूँकि लैंड की यूटिलिटी बढ़ जाएगी तो लैंड लॉर्ड जो है वो इन्हांसमेंट ऑफ रेंट का उधर क्लेम भी कर सकता है। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसने इस मामले में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि जब लैंड लॉर्ड कोई ऐसा डिसीजन करेगा तो उन रूल्स को फॉलो करेगा। डिमांड जो टेनेंट है वो कर सकता है कि रिडक्शन ऑफ द रेंट इन केस के जो सारे वो जो इम्प्रूवमेंट हुई थी अगर वो इम्प्रूवमेंट ख़त्म हो जाएं या कम हो जाएं। अब टेनेंट की सूरत में सेक्शंस पे कर सकता है। ऑक्यूपेंसी टेनेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है खुद से, वो उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। देखना पीछे हमने पढ़ा कि लैंड लॉर्ड को ऑक्यूपेंसी टेनेंट के होते हुए ज़रूरत है, लेकिन ऑक्यूपेंसी टेनेंट को अगर खुद से अगर उसने वो इम्प्रूवमेंट कर दी तो ये उसको उसको किसी से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 63 है ये। सेक्शन 64 जो है वो ये कहते हैं कि अगर किसी के पास ऑक्यूपेंसी का राइट नहीं है किसी टेनेंट के पास तो फिर उसको लैंड लॉर्ड की पहले परमिशन चाहिए होगी, और वो परमिशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द केस। An application of ejectment or enhancement of rent will not be decreed in favor of landlord until such tenant has not been compensated regarding such improvement। देखे ना, अगर उसने परमिशन पहले ली और इम्प्रूवमेंट को उधर कर दी, उसने कोई वहाँ पे इम्बार्कमेंट की है, कोई उसने कुआं खोदा है, तो फिर जब तक कि उसको कंपनसेट नहीं करेंगे तब तक कि उस तरह की कोई चीज़ जो है वो उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई क्लेम डिक्री वगैरह नहीं होगी इजेक्टमेंट का। Improvement made before promulgation of this act will be deemed to be in accordance, ये आपकी सेक्शन आ गई सेक्शन 65, with this act unless it is proved that other than occupancy tenant had made such improvement in contravention of written agreement with the landlord। अब इस एक्ट के प्रोमलगेशन से पहले अगर किसी ने कोई इम्प्रूवमेंट की है और वो इम्प्रूवमेंट अगर वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी टेनेंट तो वैसे भी इंप्रूवमेंट कर सकता है, अगर वो ऑक्यूपेंसी टेनेंट नहीं है और उसने वो इम्प्रूवमेंट विदाउट लैंडलॉर्ड की रिटन एग्रीमेंट की कंट्रवेंशन के किया है, उसने कोई रिटन एग्रीमेंट की कोई उसने खिलाफ वर्जी नहीं की, तो वो इम्प्रूवमेंट सही इम्प्रूवमेंट तस्वर की जाएगी। अब अगली जो सेक्शन वो कहते हैं कि एन इम्प्रूवमेंट मेड बाय टेनेंट विल नॉट बी कंपनसेटेड एट द टाइम व्हेन ही इज ड्यू टू बी इजेक्टेड बाय द डिक्री और any such ejectment notice has been served upon such tenant। यानी अब यहाँ से हिसाब लगाना है कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, आप किसी को इजेक्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपने उसको कंपनसेट नहीं किया, और कोई भी इम्प्रूवमेंट फिर उस सूरत में भी देखना। आप यहाँ पे आपने एक बैलेंस देखना है। नॉर्मली तो ये देख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो तो आपने उसको कंपनसेट करना होता है, लेकिन अगर वो इम्प्रूवमेंट किसी ऐसे वक्त कर रहा है जब उसको पता हो कि मुझे निकाल रहे हैं और तब वो इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दे, तो फिर ये जो बहाना है ये नहीं चलेगा कि मुझे ना निकालो, फिर उसको निकाल सकते हैं। सेक्शन 69 कहती है कि इफ ए टेनेंट हु हैज़ नो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन अ लैंड बट ब्रिंग्स अंडर कल्टिवेशन अ बैरन लैंड, such tenant if ejected will not only be compensated for improvements but revenue authorities will also determine on basis of case a sum not exceeding 5 years rent of the said land। यानी कि अगर उस लैंड एक बैरन लैंड को अगर एक जो टेनेंट है जिसका कोई राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं वहाँ पे, लेकिन उसने उसको कल्टीवेट किया, तो आप ये समझ लें कि इनाम के तौर पे उसको 5 साल का जो अगर उससे का जो रेंट है ना वो दिया जाएगा। यानी 5 साल का जो रेंट है उसी तरह की लैंड को देख के कि भाई इस तरह की कल्टिवेटेड लैंड में 5 साल का कितना रेंट बनता है, उस हिसाब से उसको एक किस्म का सम दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट के पैसों के अलावा। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द केस वेयर द टेनेंट इज़ जॉइंट ऑनर ऑफ द लैंड, बिकॉज इफ़ अ टेनेंट इज़ अ जॉइंट ऑनर ऑफ द लैंड, वो पहले से ही वो उसका लैंड का वो ऑनर है, ठीक है, और वो निकल रहा है वहाँ पे, उसको निकाला जा रहा है वहाँ से, या सॉरी अगर उसको ना भी निकाला जा रहा हो या वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है। लेकिन अगर जॉइंट ऑनर है और वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो फिर उसको क्या कंपनसेशन दीजिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसमें जॉइंट ऑनरशिप है उसकी, क्योंकि उस वक्त तो फिर उसके पास जो सारा प्रोड्यूस होगा उसमें तो उसका राइट बनता जा रहा है, तो इसलिए फिर उसको कंपनसेट नहीं किया जाता। इफ रेंट इज पेड बाय डिवीजन और अप्रेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस
or by the rates fixed due to the nature of the crops, or if just land revenue and rates and cesses are paid, then such compensation may be computed as if double of the amount of land revenue is the annual rent. यानी कि अगर एक बंदा समझ ले कि वो एक किस्म का ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, वो लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड सेसेस ज़्यादा नहीं दे रहा, तो फिर तो 5 साल का जो भी अपने पीछे पड़ा है कि रेंट जो है वो तो इधर काबिल अमल है ही नहीं, क्योंकि वो तो बंदा रेंट दे ही नहीं रहा था। तो उसको इम्प्रूवमेंट्स का आपने उसको कैसे कंपनसेट करना है, वो ऐसे कंपनसेट करना है कि फिर आपने ये देखना है कि जितना वो लैंड रेवेन्यू रेट्स एंड सेसेस दे रहा उसका डबल समझा जाएगा कि वो जो डबल है वो एनुअल रेंट है। तो ये आपने समझना है इस चीज़ को अंडर सेक्शन 69। यानी याद रख लें कि अगर तो उसने बैरन लैंड को कल्टीवेट किया तो पिछले 4 साल का रेंट 5 साल का रेंट दिया जाएगा इकट्ठा इम्प्रूवमेंट के पैसों के अलावा। और अगर वो एक किस्म का ऑक्यूपेंसी टेनेंट है या वो फिक्स रेट पे या अप्रेजमेंट या डिवीजन ऑफ प्रोड्यूस पे उधर रेंट दिया जाता था, तो जो लैंड रेवेन्यू बनता है ना उसका डबल कर लिया जाएगा। उसका जो डबल होगा ना, लैंड रेवेन्यू का डबल जो होगा वो एनुअल रेंट सवर किया जाएगा उस सूरत में। अब कंपनसेशन जो है, जो हम कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट की कंपनसेशन है, उसको कैसे डिटरमिन करेंगे। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि इम्प्रूवमेंट कौन कर सकता है, लैंड लॉर्ड और टेनेंट की सूरत में, और इम्प्रूवमेंट का जो है कंपनसेट आपने कैसे करना है। लेकिन अब बाद में कंपनसेशन को डिटरमिन कितनी अमाउंट कितनी होनी चाहिए कंपनसेशन की, उसको आपने कैसे डिटरमिन करना है। इन एवरी सूट ऑफ इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट और इन्हांसमेंट ऑफ रेंट, कोर्ट शैल डायरेक्ट द टेनेंट टू फाइल हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ इफ कंपनसेशन। देखिए आपने टेनेंट को एक राइट दिया है कि वो अपने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स को दाखिल करे। In case if compensation is due from landlord, the court shall stay the proceedings until such amount is paid to tenant। जब तक के टेनेंट को वो अमाउंट पे नहीं होती तब तक के इस प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं चलाया जाएगा कंपनसेशन की या इन्हांसमेंट ऑफ रेंट की या इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट की। तो देख रहे हैं इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट जो भी हमने पहले भी पढ़ा था, इसको या इजेक्टमेंट आप कर रहे होते या आप इन्हांसमेंट ऑफ रेंट कर रहे होते ना कि इम्प्रूव हो गई ये लैंड और अब इसका रेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो इन दोनों सूरतों में जब तक कि उस इम्प्रूवमेंट के पैसे आप टेनेंट को नहीं दे रहे तब तक ना इन्हांसमेंट ऑफ रेंट होगी ना उसको निकाला जाएगा। जब आप उसको कंपनसेट करेंगे तो आप उसको निकालेंगे ना, इजेक्टमेंट होगी उसकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इजेक्टमेंट का कानून और इम्प्रूवमेंट का कानून कैसे एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो रहा है। कोर्ट शैल ऑल्सो सी द अमाउंट इफ एनी ड्यू बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड इन सच केस। Revenue officer may also apply the same method in case of ejectment application made in case of areas of land or in case where tenant has no specific contract or he is tenant for year to year as mentioned in section 44 and 45। क्योंकि देखना 44 सेक्शन में आप इजेक्टमेंट करते हैं जब एरियाज ऑफ लैंड होते हैं, और सेक्शन 45 में आप उस वक्त इजेक्टमेंट करते हैं जब आप ना ऑक्यूपेंसी टेनेंट है, ना आपके पास कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, ना आप ईयर टू ईयर है। Matters to be regarded in assessment of compensation. To assess the compensation of improvement, following matters will be taken into account: the amount of which value or the produce or the value of produce in tenancy has increased, है ना, क्या वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, प्रोड्यूस की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, या ओवरऑल टेनेंसी की प्रोड्यूस कितनी इंक्रीज हुई है, ये देखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि कंडीशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट और उसका पॉसिबल ड्यूरेशन कितना है उसका इफेक्ट का। फिर लेबर एंड कैपिटल ऑफ सच इम्प्रूवमेंट, एनी रिडक्शन और रिमिशन ऑफ रेंट और अदर एडवांटेज अलाउड टू द टेनेंट बाय लैंडलॉर्ड। कि अगर लैंडलॉर्ड ने ऑलरेडी उसको रिड्यूस किया हुआ उसका रेंट या उसको कुछ छूट दे दी उसने रेंट में, तो वो उस एडवांटेज को भी कैलकुलेट करके अपने कंपनसेशन को जो है वो असेस करना है। In case of reclamation or of conversion of unirrigated to irrigated land, the length of time during which the tenant has benefited। अब देखें ना, अगर एक उसने इम्प्रूवमेंट किया, उस इम्प्रूवमेंट के बाद वो ज़्यादा प्रोड्यूस वहाँ से गैदर करता रहा, तो ये भी देखा जाएगा ना कि उसने उस प्रोड्यूस जो गैदर किया ड्यू टू कि वो पहले तो वो बारिश डिपेंडेंट जगह थी, बाद में उसने वहाँ पे नहर वगैरह खोद ली, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हुई। तो इस इम्प्रूवमेंट के बाद उसने कितने अरसे से वो वहाँ पे वो फसल काट रहा है उस तो उस वक्त उसने कितना वहाँ से मुनाफा उठाया, तो उस मुनाफे को आप कट करेंगे ना उस एक्सपेंसेस से भी, ये भी देखना पड़ेगा।
कंपलसेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मनी अनलेस पार्टीज एग्री अदरवाइज, यानी कि अगर वो पार्टीज समझते हैं कि नहीं पैसों की के अलावा किसी और सूरत में कंपलसेशन होनी चाहिए तो वो भी हो सकता है। तो अब इसमें एक और जो लास्ट सेक्शन है वो ये कि अगर टेनेंट ने इन केस ऑफ कंपनसेशन उसको कंपनसेशन अवार्ड नहीं हुई और रेवेन्यू ऑफिसर ने या रेवेन्यू कोर्ट ने उसको डिस्पोजेस कर उसको इजेक्ट कर दिया, उसको निकाल दिया है वहाँ से और उसको इम्प्रूवमेंट के उसको पैसे नहीं दिए, तो फिर क्या होगा? फिर उसके पास ये रिलीफ है कि 1 ईयर तक आफ्टर एजेक्टमेंट वो ये पटिशन एक फाइल कर एप्लीकेशन एक फाइल करेगा टू द कोर्ट और रेवेन्यू ऑफिसर कि वो चूँकि उसको कंपनसेशन के बगैर निकाल गए तो वो उस कंपनसेशन मुझे वो उसको दिलवाए। तो कहते हैं ना 1 साल के अंदर हो सकता है। अब वो रेवेन्यू ऑफिसर ने कोर्ट ने उसको निकाल दिया, वहाँ पे कोई नया टेनेंट आ गया, उसने नई कल्टीवेशन शुरू कर दी है, लेकिन पुराने टेनेंट को आपने विदाउट ड्यू कंपनसेशन आपने उसको निकाल दिया। तो फिर एक ही चारा बचता है कि भी आप जो ड्यू कंपनसेशन बनती है वो उसको दिलवा दी जाए। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है अपने पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई करता है और उस पर कंपनसेशन का एलिमेंट जो है इसमें शामिल करता है और फिर वो उस लैंडलॉर्ड को कहता है कि भाई तुम इसको कंपनसेशन दे दो क्योंकि पहले कंपनसेशन तुमने नहीं दी थी, या रेवेन्यू कोर्ट से ही मिस्टेक होगी वो कंपनसेशन नहीं दिलवाई उसने। तो ये था टू इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड का टॉपिक। तो मज़ीद इसमें अगर कोई क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी थ्रू मैसेज। थैंक यू।